Good afternoon, ma'am. Good afternoon. The last class, we just did a framework of designing a training program, right? देखिए ये जो डिजाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको स्टेप वाइज आप याद कर लेंगे. यू विल रिमेंबर इट स्टेप वाइज कि डिजाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या होता है. द फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग नीड analysis, and this need could be both the organizational need and the individual need. और ये ऑर्गेनाइजेशनल नीड है या इंडिविजुअल नीड है, इसको फाइंड आउट करने का भी बहुत सारा मीन्स होता है. ये मीन्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे. The second point is identifying training objective. Once we have identified that which kind of need is it, training क्यों की जा रही है, we identify the exact objective of training, because we need to get into the nuances of it. We need to understand that what is the objective of training. Always remember, training is a huge cost borne by the organization. काफी पैसा लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग कराने में, इसीलिए इतना खर्च और इतनी बड़ी एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में. सो the second point is identifying training objectives, which is with what intention the training is being carried out. क्या ये objective behavioral change है, क्या ये objective cost control है, क्या ये objective efficient management है, क्या ये objective कोई और purpose से intended है. Okay. And the third point is organization of training. What have you written in organization of training? Place, trainer, Place, and trainer and method. बोलो. पहला पॉइंट उसमें लिखो सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज. ये शायद एक पॉइंट मिस हो गया होगा. सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव प्लेस, देन यू हैव प्रोसीजर, देन यू हैव ट्रेनर. राइट. द फोर्थ स्टेप इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग. तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग के ब्रैकेट में डालो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब. And in the last, you write evaluation of training program. Evaluation of training program. Okay, let's start with details of each point. ये इसका heading दे दिया ना, designing of training program, and then let's start with details of it. एक मिनट रुकना. See, as we discussed that training program, the need of training, the first point is what? Training need identification. यानी training की need है भी कि नहीं organization में. This is the first step that goes into designing the training program. Now this need could be both organizational need as well as individual need. How do we identify organizational need and individual need? Write down. Methods used in training need assessment. Write down. Methods used in training need assessment. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस हेडिंग दो. एक साइड या फिर एक साइड पे ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस हेडिंग दो और दूसरे साइड पे इंडिविजुअल एनालिसिस हेडिंग दो. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में लिखो पॉइंट नंबर 1, organizational goals and objectives. Organizational goals and objectives. Next, skill inventories. Skill inventories. Next, efficiency indices. Efficiency indices.
इंडेक्स होता है ना, उसी का प्लूरल लिखो, efficiency indices. Next, exit interviews. Next, quality circles. Next, customer survey. Okay, now write an individual analysis. The points लिखिए. Performance appraisal. इंडिविजुअल मैम क्या बोले? Performance appraisal. Next, interviews. Next, questionnaires. Next, observation of behavior. Next, attitude survey. Attitude survey. ओके, ये जो पॉइंट्स तुमने अभी लिखा, ये क्या लिखा? ये पहला पॉइंट जो डिजाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है ना ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, यानी ये नीड ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है और ये नीड इंडिविजुअल की भी हो सकती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की नीड है तो तुमको पता कैसे चलेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड है? थ्रू दीज मेथड्स दैट यू हैव रिटन. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पहला पॉइंट लिखा है. नाउ सी, it could be possible that you have some goal fixed, the organization has some goal fixed and that is not being fulfilled. ठीक है, तो अगर उसमें कोई लैक दिख रहा है, then what will you do? You will aim at doing the training for it to compensate for it. The second point is skill inventories. skill inventory का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री मतलब जहाँ सामान जमा करते हैं, ठीक है, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्टॉक, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री होता है, ह्यूमन का इन्वेंट्री होता है. ओके, सो सपोज करो, द अदर डे आल्सो आई एक्सप्लेन दिस टू यू इन क्लास, कि सपोज करो कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोजेक्ट है, कुछ वैसा हैंडल करना है, या वो कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रही है, या फिर इट इज ट्राइंग टू अपग्रेड दैट टेक्नोलॉजी. व्हाट हैपेंस इज दैट in that case the organization will try to keep its inventory updated by training its individual. कई बार क्या होता है कि आप जब नए प्रोजेक्ट को हैंडल करना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने लायक इन्वेंट्री आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से प्रेजेंट है, या बाहर से हायर करनी होगी, या अगर प्रेजेंट है तो वो अप टू द मार्क है क्या कि हम उसको ट्रेन करके फिर अप टू द मार्क कर सकते हैं. समझ में आ रही है बात? यही मतलब है ह्यूमन इन्वेंट्रीज या स्किल इन्वेंट्रीज का. नेक्स्ट पॉइंट, इफिशिएंसी इंडिसेस. सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन एक वर्क स्टडी मेथड से, वर्क स्टडी पढ़े हो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में या इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे थोड़ा बहुत वर्क स्टडी, या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जब पढ़ रहे होगे तब No, पढ़े ma'am. होगे? नहीं. देखो, वर्क स्टडी मेथड से काम को पढ़ा जाता है, यू नो देयर इज अ स्टडी व्हिच इज मेड फॉर ईच एंड एवरी वर्क, और प्रोडक्शन में ये डिसाइड किया जाता है कि इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, एक एवरेज एफिशिएंसी क्या डिलीवर होनी चाहिए इस काम के लिए. तो से फॉर एग्जांपल कि you have the efficiency of producing 500 units in a day, but your organization is able to produce only 400 units in a day. Then ये efficiency का index ये बताता है कि there is a further scope of improvement in your organization. Maybe this improvement can be brought about if you train your employees. Okay? समझ में आ रहा है? Next point. What have you written in the Yes, next ma'am. point? Exit interviews. Yes, ma'am. Exit interviews. The other day I told you about exit interviews. I guess the network was very poor, so I could not explain it to you properly. Exit interview का मतलब होता है, देखो as the name suggests, it is very obvious. Exit का मतलब होता है जब निकल के जा रहे होते हैं. तो जब निकल के इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोई छोड़ रहा होता है, जब भी कोई एम्प्लॉय,
उस वक्त भी उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किया जाता है? मोस्टली ये जानने के लिए कि उस एम्प्लॉय का स्टे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहा, हाउ वाज हिज स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस, what is his experience of organization, what is the reason of leaving that organization। ठीक है, इन सारी चीजों को, या फिर is there any suggestion that that person wants to give, क्योंकि हर बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का रीजन इज नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, समटाइम्स देयर आर पर्सनल नीड्स आल्सो। जैसे तुम्हारा ट्रांसफर हो गया यहाँ से, तुम यहाँ पटना में काम नहीं कर सकते हो, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन की तो कोई गलती नहीं है, बट द ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट एन एग्जिट इंटरव्यू। तब वो तुमसे क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे कि इज देयर एनी फर्दर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट, क्योंकि तुमने किसी एरिया में काम किया है 2 साल, क्या तुम कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहती हो या चाहते हो। So exit interview in totality is conducted for a number of reasons. वो number of reasons में क्या होता है, जब आप उस exit interview के डेटा को एनालाइज करते हैं, और यहाँ ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब मान लो कि 10 एग्जिट इंटरव्यू तुमने कंडक्ट किया, जिसमें से कि 7 लोगों ने ये बोला कि यहाँ फर्दर कोई स्कोप नहीं है करियर प्लानिंग का, देयर इज नो ग्रोथ दैट आई कैन सी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई नीड टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर इतने सारे लोग एक ही रिमार्क दे के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, तो अ गुड मैनेजमेंट विल ऑलवेज टेक नोट ऑफ दिस फैक्ट एंड अ गुड मैनेजमेंट विल ऑलवेज वर्क ऑन इट। वो ये सोचेगा कि हाँ, आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, उनमें कोई फर्दर डेवलपमेंट, कोई एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स नहीं होती है, इससे एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट होकर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं। और आपको ये मालूम है कि लेबर टर्नओवर एक प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Yes, ma'am. Any organization will seek a stable workforce for its workforce। कोई नहीं चाहती है कि तो वो आए, उसको तुम ट्रेन करो, उस पर मेहनत करो, उसको इंक्रीमेंट दो, और फिर वो 2 साल 2.5 साल 3 साल में छोड़ के चले जाए। नेक्स्ट टॉपिक, यू रोट क्वालिटी सर्कल्स। देखो क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है, जैसे मान लो कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कंसिडर करो, तो एक ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग, 5 से 6 लोग जो कि सीनियर होंगे, कुछ जूनियर भी हो सकते हैं, कुछ वर्कर ऐसे जो एक्सपर्ट हैं, सीनियर वर्कर्स हैं, वो भी हो सकते हैं। एक ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग जब एक साथ एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, क्वालिटी सर्कल उसको कहा जाता है। ये क्वालिटी सर्कल क्या करता है, ये काम को देखता है, ठीक है, ये प्रोडक्शन के हर छोटी चीज को एक साथ, मान लो वीक में एक बार या 3 दिन में एक बार, they discuss the problems that they are facing in production. Even if they are not facing any problems, they will discuss कि क्या इस चीज को हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप ये हमेशा याद रखिएगा कि when you are in management line, there is always better ways of doing the best things. कोई एक चीज इतनी बेस्ट है कि वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। There is always a scope for further improvement. तो क्वालिटी सर्कल्स यानी 5-6 लोगों का, जो सीनियर लोगों का ग्रुप होता है, जो एक ही डिपार्टमेंट के होते हैं, और वो डिस्कस करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई स्कोप है फर्दर इम्प्रूवमेंट का, तो उससे भी अगर मान लो फाइंड आउट कर लिए कि हाँ प्रॉब्लम है या किसी चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, दे विल गो टुवर्ड्स ट्रेनिंग। दिस विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, understood? Okay, there's one more point here, customer satisfaction or customer survey, right? ये पॉइंट लिखे हो? हाँ नहीं, कस्टमर सर्वे है। ठीक है, ऑब्लिक करके सेटिस्फैक्शन एक ही चीज हुई। देखो, there could be times, मान लीजिए कि आप एक कस्टमर है, ठीक है, आप यू गो टू सम होटल, एक होटल तुम जाते हो, और उस होटल में जब तुम उसका रेस्टोरेंट विजिट करते हो, तो रेस्टोरेंट विजिट करने के बाद वो एक फीडबैक फॉर्म देंगे तुमको, ठीक है। तो वो फीडबैक फॉर्म में तुमको हमेशा ये मार्क कॉलम्स दिया रहता है कि कैसा खाना था, खाना गर्म सर्व किया गया था कि नहीं, हाउ क्विक वाज द वेटर,
हाउ क्विक वाज द सर्विस, और ऐसा ऐसा करके 6-7 कॉलम बनाया रहता है। मान लो कि कोई 12-13 कस्टमर्स जो है वो एक ही टाइप का प्रॉब्लम को बार बार पिन पॉइंट कर रहे हैं फीडबैक फॉर्म में। ओके, एक ही टाइप का प्रॉब्लम, जैसे कि वो ये प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सर्विस अच्छी नहीं, खाना तो अच्छा है पर सर्विस अच्छी नहीं, वेटर को बुलाते हैं और वो फिर बहुत टाइम लगा रहा है। एक ही प्रॉब्लम को वो बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है अलग अलग फीडबैक फॉर्म में। और इस डेटा का जब एनालिसिस होता है, क्योंकि ये डेटा बहुत ऊपर तक जाता है मैनेजमेंट में, एनालिसिस होता है तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं तो ये समझ रहा है कि शायद उसके जो वेटर्स हैं, उसके जो स्टाफ है, दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, उनको समझ में नहीं आ रही है ये बात, राइट? दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप किसी के कॉल करने के बाद तुरंत जाके उनको अटेंड कीजिए, उसके बाद उनको ऑर्डर लीजिए एंड बी क्विक ऑन दैट ऑर्डर। ये समझ आ रहा है तुमको? Yes, ma'am. ठीक है, इसको कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसे अदरवाइज भी तुम अगर बिग बाजार पैंटालून्स वगैरह में जाओगे तो तुमको एक फीडबैक रेटिंग स्केल दिया जाता है ना, यस मैम। राइट? यस मैम। अब जोमेटो पे कोई रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का लगातार खराब रेटिंग आ रहा है, कस्टमर्स अलग अलग तरीके से उसको खराब रेटिंग कर रहे हैं, क्या जोमेटो उसको रखेगा, उस रेस्टोरेंट को अपने साथ? नो मैम। नहीं रखेगा। काफी टाइम के बाद अगर उस रेस्टोरेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका कांस्टेंट कंप्लेंट्स आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर अगर उसको ट्रेन करके उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है तो जोमेटो उसको नहीं रखेगा, दे लूज आउट ऑन बिजनेस। तो इसीलिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड को फाइंड आउट करने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू इंडिविजुअल एनालिसिस। इंडिविजुअल एनालिसिस का मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल को अगर ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन का वर्कशॉप होता है, कभी एचआर का वर्कशॉप होता है, कभी तुम्हारे एचआर वर्कशॉप बोलते हैं वो, पर दैट इज थरली अ मोटिवेशन लीडरशिप ऐसी चीजों का वर्कशॉप होता है। तो जो लोग आते हैं वो काफी मतलब वैसे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग के या लीडरशिप के फील्ड में वाइस प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और उनको बुलाया जाता है। दे चार्ज वेरी हेवीली, लेट मी टेल यू, बट द ऑर्गेनाइजेशंस कॉल देम, और उस ट्रेनिंग में सबको नहीं भेजा जाता है। यू आइडेंटिफाई द ट्रेनीज ऑल्सो, जिनको की उसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है उनको उस ट्रेनिंग में भेजा जाता है। So when we talk about individual analysis, the first point that we discuss is performance appraisal. What is performance appraisal? I told you in the last class also. Systematic evaluation of an employee. Yes. So when you're working in an organization, there is a systematic evaluation of your performance. अब ये एक साल का भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मार्केटिंग, सेल्स, ये सब के जो लोग होते हैं इनका पहले भी होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली टारगेट बेस्ड जॉब होता है। 3 महीना 6 महीने पे भी हो सकता है। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड, नंबर ऑफ बजाज इंश्योरेंस वगैरह का फोन आते रहता है ना आप लोगों के पास भी, आप जानते होंगे, लोन के लिए इधर उधर। तो उन लोगों का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो 1 साल का नहीं, कम ही ड्यूरेशन का होता है। मान लो किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल लगातार खराब आ रहा है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल करते वक्त उनका वो एंगल फाइंड आउट किया गया या वो लूप होल फाइंड आउट किया गया जो वीक है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन विल टेक अ स्टेप टुवर्ड्स गिविंग दैट पर्सन ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये तो तुमने वीकनेस पॉइंट आउट किया, ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे आपको इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और क्विक डिसीजन मेकिंग वाले जो लोग हैं वो चाहिए। वैसे में आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया एंड यू पिन पॉइंटेड एंड यू फाउंड आउट पीपल हु वर वेरी गुड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, और फिर तुम उसको और बेहतरी के लिए ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे केसेस में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट, इंटरव्यूज। व्हेन यू, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का एंड यू फील दैट समवेयर द पर्सन इज नॉट अप टू द मार्क,
or that person is up to the mark to take up new initiative or to take up more responsible task in the organization, वैसे केसेस में ट्रेनिंग फैसिलिटेट की जा सकती है. नेक्स्ट इज एटीट्यूड सर्वे. सपोज एक बंदा ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी किसी से बनी नहीं रही, उसको जिस टीम में डाला जाता है वो उस टीम में झगड़ा करता है, और इस झगड़ा करने की वजह से ओवरऑल जो ग्रुप का काम होता है वो हैम्पर हो रहा है, वो खराब हो रहा है. ठीक है, तो मे बी ही नीड्स बिहेवियरल ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोग्रेस. ट्रेनिंग प्रोग्रेस भी वही है, उसका प्रोग्रेस ट्रेनिंग में कैसा है, does he need to continue or is it okay to feel that he has had enough. Then observation of behavior, ये भी थोड़ा बहुत एटीट्यूड सर्वे के जैसा है. अगर किसी के बिहेवियर पे वर्क करने की जरूरत महसूस हो रही है, then that person will work on थ्रू ट्रेनिंग. ट्रेनिंग बहुत एफिशिएंट और एक इफेक्टिव मेजर है किसी के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए. ओके, with this we complete the first point, that is training need identification. Training need organizational need भी और individual need भी. Organizational need में आपने देखा कि which are the factors that would help you to recognize organizational need, and individual need में the factors that are responsible for identifying the individual need for training. Next is ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव. देखिए, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब स्पेसिफिक नीड. जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी का खराब हुआ, बट स्टिल यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि ठीक है खराब है, पर क्या चाहते हैं आप ट्रेनिंग से, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. क्योंकि जब तुम इवैल्यूएट करोगे ट्रेनिंग देन यू हैव टू मेंशन कि ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ कि नहीं. That the achievement of objective is also one of the most important indices of saying कि आपने जब evaluate किया ट्रेनिंग को कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कैसा कैरी आउट किया, तो you can be satisfied about it. Okay, now come to the third point. In the third point, we will start with discussing the trainer. पहला point देखो, लिखो उसको सर्कल कर लो. First point is trainees. Sorry. देखो, सपोज करो कि अभी कॉलेज में पाइथन का वर्कशॉप हुआ था ना? Yes, ma'am. लेकिन पाइथन का वर्कशॉप या पाइथन की ट्रेनिंग, चलो ये तो कॉलेज करा रहा है, मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कराएगा. पाइथन के वर्कशॉप के लिए पाइथन वाज स्टिल ओके. ब्लॉकचेन के वर्कशॉप के लिए द ट्रेनर्स देयर वर सेइंग कि व्हाइल वी आर गिविंग यू दिस नॉलेज वी प्रिज्यूम द फैक्ट कि यू नो C, C++ and Java. Okay, I heard him saying that we presume the fact कि आपको C, C++ और Java आता है. क्यों बोला उसने, बताओ? And what is his purpose of saying this? सुमन, क्वेश्चन क्या है मुझसे बोलिए तो. तुम ये बताओ कि अगर कंप्यूटर का कोई एक्सटेंडेड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्यों जरूरी है कि कंप्यूटर बैकग्राउंड का ही बेसिक्स तुमको आना चाहिए? या ट्रेनिंग किसी को भी नहीं दे सकते हैं? डू यू थिंक दे दैट सकते हैं मैम. दे सकते हैं? डू यू थिंक do you think that the choice of trainees is not important for evaluation of a good training program? It is necessary to have a trainee who has that specific background,
because then we have less time to teach him the skill set that will help him, because if we start from the basic, it will take time of organization as well as money. Organization, money, and also the specification of work gets hampered here, right? अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को मैनेज करना एक मार्केटिंग वाले को सिखाएं, तो क्या ये उतना फ्रूटफुल रहेगा जितना हम अगर एचआर वाले को सिखाएंगे तब रहेगा? नहीं ना? Yes, ma'am. नहीं रहेगा ना. एंड द अदर थिंग इज दैट एक बंदा जिसको कि आप फॉरेन भेज रहे हैं कंप्यूटर के एक्सटेंडेड प्रोग्राम के लिए, यानी आप कुछ सॉफ्टवेयर पे, मान लो कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लिखना है, प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, उसकी कोडिंग डिकोडिंग करनी है. अब उसके लिए क्या तुम किसी एचआर के इंसान को भेजोगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर को भेजोगे? कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्रामर को उसको भेजोगे. और मान लो कि जाने के पहले ट्रेनिंग देनी है, तो क्या तुम किसी एचआर के बंदे को ट्रेनिंग दोगे या कंप्यूटर प्रोग्रामर को दोगे? कंप्यूटर प्रोग्रामर को. कंप्यूटर प्रोग्रामर को दोगे. ऑब्वियस ही बात है, राइट? So this is the reason that the choice of trainees become very, very important before giving them the training. जो एक्चुअल में नीडी है, जिसको ट्रेनिंग देने के बाद वो एफिशिएंसी डिलीवर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आएगा, प्लस उसके करियर के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, उसी को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए. सो द सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट when we discuss the organization of training. Next point. What's the next thing? Trainer. Support trainer. देखो, अच्छा उसके पहले डिस्कस करो place. See, there are some trainings. Training is very important, and training is a cost borne by the company. But depending upon where and to whom you have to give the training, you need to understand that the choice of place is also a very important factor determining it. Choice of place मतलब दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस पे जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. लेकिन वर्क प्लेस के बाहर जब ट्रेनिंग देते हैं तब हम उसको कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स को जब हम ऑपरेशन करने के लिए बताया जाता है, सपोज व्हेन डॉक्टर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू ऑपरेट, सीधा उनको आप ऑपरेशन थिएटर में चाकू थमा सकते हैं क्या? नो मैम. नहीं. आप पहले उसको थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पार्ट करेंगे कि ये करने से ये हो जाएगा, अगर ये गलती हुई तो ऐसा भी हो सकता है. आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिपरकशन समझाएंगे, बिकॉज इस जॉब में ट्रायल एंड एरर वाली चीजें नहीं है. काफी थ्योरेटिकल नॉलेज देने के बाद भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो सीनियर डॉक्टर्स के साथ बहुत सालों तक काम करते हैं. यू नो दिस? उनको सीनियर डॉक्टर के साथ बहुत सालों तक काम करना होता है ताकि आप सीखिए कि अंडर अ गिवन कंडीशन कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है. नाउ similarly, if you take the example of a pilot is given all the information firstly in theoretical class. ठीक है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस एक मेथड होता है, अभी तुम लोग आगे पढ़ाएंगे, जिससे कि वो कॉकपिट पे बहुत सारी चीजों की प्रोग्राम को पढ़ते हैं, समझते हैं. अंडरस्टूड? उसके अलावा भी जैसे कि मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, इन चीजों को हो सकता है कि डायरेक्टली तुमको हाथ साफ करने के लिए नहीं मिले. फर्स्ट यू नीड टू लर्न अबाउट इट एट ऑफ द जॉब and then you will be given on the job. For example, coal mining जब होती है तब जो माइनिंग इंजीनियर को अंदर भेजा जाता है तो उनको पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाया जाता है. ठीक है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में पहले कुछ दिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में उनको समझाया जाता है
कि ऐसा ऐसा कंडीशंस होता है अंदर, पहले अवेयर किया जाता है कि टेम्परेचर ऐसा रहता है, ह्यूमिडिटी ऐसी रहती है, आपकी जरा सी लापरवाही से आग लग जाएगी. You have to wear all those safety devices, safety equipments, and then you have to go inside the mines. ठीक है, तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स और भी कुछ चीजें हैं. अब कुछ चीज ऐसी हैं जिसको कि जैसे इक्विपमेंट तुमको चलाना सीखना है, तो उसके लिए तुमको ऑन द जॉब ट्रेनिंग चाहिए होगी, कुछ मशीन्स के बारे में समझाया जाना है. ठीक है, you cannot, you will be, otherwise you will be psychologically and physically away from the workplace. So place of training is also one very important factor which is determined while you are organizing the training. ठीक है, then you have trainer. ट्रेनर से क्या मतलब हुआ? अच्छा, हम क्यों ट्रेनर डिस्कस कर रहे हैं बताओ, कोई आइडिया है? Why are we discussing trainer as a point? वो मैच्योर होता है, कोई भी बात पहले से एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग ट्रेनिंग देते हैं उसको, एम्प्लॉय को. ठीक है, but why we are discussing trainer over here is कि देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सीनियर ऑफिशियल्स भी रहते हैं, एजीएम है, जीएम है, डीजीएम है, सीनियर मैनेजर है, वहां का मेंबर है, राइट? उनको भी एक्सपीरियंस है बहुत सालों तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको एकदम स्पेशलाइज्ड ट्रेनर की जरूरत है, जैसे सेफ्टी. ठीक है, सेफ्टी, ये सब के लेक्चर के लिए कई बार we have to decide, the organization has to decide whether they should call the trainer from inside the organization or they have to call the trainer from outside the organization. यानी आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर को लेकर के आते हैं ट्रेन करने के लिए, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको ही सीक करते हैं ट्रेनिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, Methods. methods and techniques. Okay, 2 methods you have already discussed. What are the 2 methods? Off On the job After training the and on the job. What are the 2 methods of training? off The the job job on. training. After the on the job. On the job training and off the job training. क्या होता है दोनों में डिफरेंस? ऑफ द जॉब जो होता है मैम, बाहर दिया जाता है ट्रेनिंग एम्प्लॉय. कहाँ ऑन द बाहर जॉब दिया जाता है? बोलो, बाहर कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन से What? बाहर, नॉट एट वर्क प्लेस. यस मैम. और ऑन द जॉब? और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है जो ठीक है, देते हैं. ठीक है, देखो ये समझ में आ गया कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है. अब ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों होता है. थोड़ा सा लिख लो, हालांकि ये तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, बट स्टिल व्हेन यू आर स्टडीइंग द ट्रेनिंग यू शुड स्टडी इट कंप्लीटली. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एडवांटेज बताइए आपको, कुछ सोच सकते हैं? Less cost. लेस कॉस्ट किसने बोला? वेद प्रकाश. टाइम सेविंग भी है, टाइम सेविंग, एक गुड. साथ theory लिख और लो, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है. ये लिखते जाओ, लिखते जाओ. एडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. पहला पॉइंट बताया किसी ने, लेस एक्सपेंसिव. दूसरा पॉइंट बताया टाइम सेविंग. देखो टाइम सेविंग ना, इसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है, तुमको हम बताएंगे ऑफ द जॉब में भी, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम सेविंग है ये. ऑफ द जॉब के भी कुछ प्रोसेस हैं जो कि टाइम सेविंग होते हैं. नेक्स्ट, अलग से ट्रेनर नहीं लाना पड़ेगा. हाँ गुड, द ट्रेनर इज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. गुड, वेरी गुड.
and it is comfortable as the employee is psychologically and physically at the workplace. Right now, the employee is physically and psychologically at the workplace. अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या सोच सकते हो? कोई डिसएडवांटेज ध्यान में आ रहा है? देखो, सपोज यू आर ऑल एम्प्लॉय एट अ वर्क प्लेस. तुम्हारा बीबीएम का जो क्लास है वो ऑफिस है एंड आई एम द ट्रेनर. नाउ व्हेन आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन और व्हेन आई एम ट्रेनिंग यू, तुमको तो उतना ही आएगा जितना हमको आता है, राइट? यस मैम. यस मैम. जो हमको नहीं आता है वो शायद हम तुमको डिलीवर नहीं करेंगे, राइट? सो जो ट्रेनर की कमी होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, वो जो फ्रेश एम्प्लॉयज होते हैं उनमें भी पास हो जाती है. ओके, द deficiencies that are present in the trainer are passed on to the employees. Okay, कोई और disadvantage? मैम लाइक अगर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर डायरेक्ट मतलब प्रैक्टिकली किसी को ऑपरेट कर रहा है तो उसका डेथ हो सकता है. नहीं, तो एक ये loss तो है. बात नहीं हो रही है ना. वो तो उनको उसको डायरेक्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाएगा. ये बात हो रही है कि चलो सिलेक्ट कर लिया गया है वाइजली कि ऑन द जॉब में किसको रखा जाए और ऑफ द जॉब में किसको रखा जाए. अब बताओ, मान लो कि सब जेन्युइन है, सब ठीक है, अब ऑन द जॉब में क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? सी, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन. व्हाई? मैम कस्टमर आएगा और जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है तो वो गलत एग्जांपल या गलत रिजल्ट देगा कस्टमर को, उससे कस्टमर डिससैटिस्फाइड हो जाएगा. See, if we restrict our discussion to production, we'll find out that one point that I told you, that the deficiencies of the trainer will pass on to the employees, and the second thing is that जो train करते हैं तुमको, he is actually your supervisor, your immediate supervisor. Not that a GM of the company will come and train you. Okay, so Akanksha, you just exit and then you rejoin. Last time Muskan was having the same problem. Okay, ma'am. So when your immediate supervisor is taking your class or he is responsible for training you, what happens that he's not paid anything extra to train you. So his prime motivation will be to get his production thing done rather than teaching you. He'll be more interested in getting the production schedule not disturbed rather than imparting you knowledge with full swing. You getting my point? वो एक supervisor है. He'll be more interested in streamlining the production thing rather than आपके ऊपर टाइम स्पेंड किया जाए. तो इस तरीके से क्या होता है कि sometimes your learning becomes hindered. Okay? Yes, ma'am. Now coming back to off the job training. Tell me some advantages. See, the primary advantage of off-the-job training is that there is no doubt about the trainer. The trainer is always supposed to be a person who is highly skilled and equipped in his respective fields. Whoever the trainer is called, it is made sure that the trainer is an eminent person in his field. So the knowledge, there's no question about knowledge. There's no question about his skills. That is very good when we talk about the trainer in off-the-job training. Second thing is, as we discussed, that there are certain jobs that are suitable first in off-the-job training. Third thing, suppose I'm giving you lecture in the class. There are 5 students.
Would it matter if there are 7? Would it be a problem? No, No. ma'am. Would it be a problem if there are 10? No. 15? No. If the class has a maximum strength of 30, 35, would it be a problem if there are 35 students present on a day? No. I'm still the same person. You students are there. The numbers have increased. So what happens? Sometimes the cost per hire goes down in 1 or 2 methods. Like जैसे कि जो तुमने कहा था कि cost, I told you कि ऑफ द जॉब में भी जो lecture method होता है उसमें cost per hire कम हो जाता है. Why? Because the same trainer can be used to give lecture to a large number of people. तो जनरली क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्ट्री बताया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्रेस बताया जाता है वो सब इस मेथड से किया जाता है. ठीक है. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का डिसएडवांटेज क्या होगा? सी द डिसएडवांटेज इज दैट यू मे हैव प्रॉब्लम नो मैटर हाउ मच. अब मान लो कि तुमने कभी जैसे ओके टेक अ डिफरेंट एग्जांपल. द किंडरगार्टन स्टूडेंट्स, those who were supposed to enter the school in 2020, since then there has been a lockdown, the schools never reopened for them, so they were equipped to doing online classes, right? So we say that that is a mode how school is operating because there's no way left out. But would they not have problem when they actually go to school, coping up with the actual environment? Right? This is the same thing that happens or that may happen with the employees who are in off the job training. No matter how good how nicely you are taught in off the job training, once you go to the workplace you may have some difficulties coping up with the real actual environment. This is the problem. The second problem is you're physically and you're psychologically away from your workplace. That is also one reason that you may not find it very, very real. So on the job and off the job training methods, they do have their own pros and cons, but they do have their own suitability in different times. Okay. From the next class, we'll start with the methods. On the job में जितने methods हैं आपके module में वो deal करना है, and off the job में जितने वो deal करना है. Okay.